नदियाँ अक्सर पहाड़ों के ऊपर से निकलती हैं। पहाड़ों के ऊपर उनका सोर्स रहता है, चाहे वो गंगा हो, चाहे वो गोदावरी हो, चाहे कावेरी हो, चाहे नर्मदा हो, वो एक पर्वत के शिखर से निकलती है, ये पर्वत की एक चोटी से निकलती है। तो उनका बेस मटेरियल जो है पानी, वो पर्वत से ही आता है। लेकिन उस पानी को लेकर जब वो चलती है तो वो जहाँ जहाँ जाती है वहाँ जीवन नर्चर करती हुई जाती है। वेस्टर्न कंट्रीज में ब्रेस्ट फीडिंग एक शेमफुल एक्ट है जो आप पब्लिक में नहीं कर सकते। लेकिन भारत में अगर आपने हमारे ज़माने में ट्रेन में ट्रैवल किया है, महिलाएं बिना किसी संकोच के ब्रेस्ट फीडिंग अपने बच्चों को कराती हैं और उनको कोई गलत दृष्टि से नहीं देखता, क्योंकि हम सब माँ का दूध पीकर बड़े हुए हैं। रुक्मिणी जी और कृष्ण जी कभी नहीं मिले लाइफ में, लेकिन रुक्मिणी जी ने कृष्ण जी के बारे में सुन रखा था और सुनने के बेसिस पर उन्होंने अपना मन बना लिया था कि मुझे इसी से विवाह करना है। उन्होंने 7 श्लोक का एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने ये लिखा कि मैं आपसे प्रेम करती हूँ और प्रेम की लिमिट ये है कि अगर आप मुझे नहीं मिले तो मैं मृत्यु को अपना लूंगी और आपसे अगले जन्म में मिलूंगी। अगर आप कुछ करना चाहते हो, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। डोंट एक्सपेक्ट योर फादर, योर मदर, योर ब्रदर, योर सिस्टर, योर हस्बैंड, योर फ्रेंड्स टू डू इट फॉर यू। You want something? Go ahead and get it. You need support? Please seek support. With your presence today and bestowing upon us your guidance and support every single day. Now, I'd like to call our respected head of the department, Dr. Bhanumati Mishra ma'am, to introduce our guest who will be. A very good morning to each and everyone sitting in this august audience. To begin with, welcome sir, Dr. Shashikant Dixit sir. He is a rock star. He is always there. Sir, आपको मैं rock star बोल रही हूँ। क्यों? क्योंकि you have always been an icon and somebody who's always been inspiring us to do the best, and at this age, he is all the time thinking about the college and about the welfare of the students and the faculty, and a big round of applause for him. I welcome and thank our honorable principal, Professor Rachna Dubey. Without her trust and without her inspiration, we wouldn't have been putting this together. And she was in China and we had already planned this. So I just put a text to her saying, ma'am, we are planning this, and without hesitation and without wasting any time, she said, go ahead. Thank you so much, ma'am, for giving us that green signal. I love the Department of English, my colleagues, Dr. Amit Kumar Shukla, Dr. Kumari Preeti, and all my junior colleagues who put this entire thing together with the help of the Blue Stocking students. A big round of applause for them. Dr. Krishna sir, thank you so much for coming and gracing us. And I also welcome some of the faculty from Agrasin Vidyalaya, Mahavidyalaya. Thank you for being here. And there are students here from other colleges, and a big round of applause to the students of BHU Cine Club who have volunteered to record this. Now let me welcome my dear guest speaker, honored to present an introduction for her, and she is Anuradha Goyalji. She needs no introduction, otherwise yet you got a small inkling, a glimpse about who she is. She dons many hats. Like Prince Kunal said, where do I begin explaining about her? The most important thing about her is that she is a bridge between the ancient India, the customs, the rituals, the temples, the history, the civilization, and the modern today's generation, the Gen Z, and the trends today. She is so adept at bridging the gap between these two. And I think it's a very, very rare quality that any person can have.
So I welcome you, Anuradha ji, for coming here. We have a lot of other topics to discuss, like cultural entrepreneurship. I was told by Bharat Adhyan Kendra, I'm sorry, I must acknowledge that she is the resource person given to us from Bharat Adhyan Kendra because she is the visiting faculty of that Kendra right now. And Professor Sadakshi Trivedi ji, he said she is the only lady in the country who can speak on cultural entrepreneurship. Why don't you take up that as a topic? Of course, we will do that in the coming months. But then I said, let us begin with Indian feminism, because all of us, when we are doing English literature, we always come across Western feminist theories, Simone de Beauvoir, or Elaine Showalter, or Virginia Woolf. We can empathize with them. We know our struggles overlap, but then I think somewhere I think our struggles are different because we have a civilizational context to fall back upon. We have a template on which we need to look at ourselves and we need to ask ourselves, are our struggles recent? What is it that we can learn from the past? What is it that we can discard? And how do we move ahead? And being a girls' college, this is one of the most contemptuous and a very contemporary topic that we need to address. Who better than Anuradha ji? So without wasting much time, I request her to now come and address us. Anuradha ji, the mic is all yours. Thank you so much. नमस्ते, रचना जी, शशिकांत जी, भानुमति जी, विश्वनाथ जी, अमित जी, प्रीति जी, और भारत की युवा नारी शक्ति, आप सबको मेरा प्रणाम। बहुत दिन बाद महिला कॉलेज में आने का मुझे अवसर मिला। मैं यूजुअली आजकल महिला कॉलेज बहुत कम बचे, मोस्टली वी हैव को-एड कॉलेजेस, so I'm very happy to speak to lot of what I would say my younger self. So it's good to see all of you. आज का टॉपिक है शक्ति, सृष्टि और सखी। तो मैं सृष्टि और शक्ति से बोलना शुरू करती हूँ, क्योंकि ये दोनों इंटरट्वाइन है, ये आपस में जुड़े हुए हैं, इनको हम अलग कर ही नहीं सकते। सृष्टि क्या है? मैं आपको ले जाती हूँ हमारे शास्त्रों में, ग्रंथों में, जहाँ सृष्टि बताया गया सृष्टि कैसे होती है। सबसे पहले कुछ भी नहीं था, there was nothing, there was absolute nothingness। तो उस nothingness में एक इच्छा उत्पन्न हुई, there was a will to multiply itself। तो उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए एक शक्ति का जन्म हुआ। ये आपने अगर कोई भी भारतीय ग्रंथ पढ़ा है तो पढ़ा होगा, और आप तो काशी में रहते हैं तो आप लोग बाय डिफॉल्ट ज्ञानी हैं। तो वो जो शक्ति उत्पन्न हुई उसको हमने नाम दे दिया शिव और शक्ति। मैं फिजिक्स की स्टूडेंट हूँ, तो मैं फिजिक्स के एंगल से अगर उसको या फिजिक्स की भाषा में उसको बोलूँ तो वो शिव जो है वो एक पैसिव एनर्जी है, वो एक लेटेंट एनर्जी है। उनमें एनर्जी तो है लेकिन वो पैसिव है, वो किसी फॉर्म में हमें दिखाई नहीं देती। वही जो शक्ति है वो उनकी काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी एक्टिव एनर्जी है, जिस एनर्जी से सब कुछ चलता है। तो अगर किसी ने फिजिक्स नहीं पढ़ा है तो मैं बहुत सिंपल सा इसका एक बहुत क्रूड एग्जांपल देती हूँ। पेट्रोल होता है, पेट्रोल अपने आप में चल नहीं सकता, लेकिन पेट्रोल को जब इंजन काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है तो वो बड़ी से बड़ी गाड़ियाँ खींच लेता है, वो हजारों किलोग्राम की गाड़ी खींच लेता है। या कोयले से जब हम स्टीम बनाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, तो वो जो चीज़ चलती है वो शक्ति है, लेकिन जो उसका सोर्स है वो पैसिव एनर्जी है। ठीक है, ये बेसिक, इसको साइंस में समझ लीजिए, आध्यात्म में समझ लीजिए। ये हमारी सृष्टि का एक बेसिक सिंपल वेरी सिंप्लीफाइड कॉन्सेप्ट है। अब ये कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट को जब
हमारे वेदों से पुराण निकले, पुराणों से इतिहास निकला, इतिहास से अलग अलग कथाएं निकली, तो उन्होंने अलग अलग भाषाओं में इसको रूपांतरित किया, इसको ट्रांसलेट किया गया। तो ये एक पुरुष एंड प्रकृति का रिलेशनशिप बन गया। वही रिलेशनशिप हमें शिव और शक्ति का मिलता है। उनका रिलेशनशिप क्या है कि सोर्स जो है वो शिव है, लेकिन उस सोर्स को लेकर संसार रचने वाली, संसार चलाने वाली और संसार का चक्र चलाने वाली, जिसके लिए संहार भी करना पड़ता है, वो चक्र चलाने वाली शक्ति है। ठीक है, इसको मैं एक और एग्जाम्पल से आपके साथ शेयर करती हूँ। और ये एग्जाम्पल मुझे अभी कुछ दिन पहले, मैं श्रीनगर से फ्लाई कर रही थी, तो मैंने वहां से पर्वतों से नदियों को हाइट से निकलते हुए देखा। तो पर्वत और नदी का भी जो रिलेशनशिप है वो शिव शक्ति जैसा ही है। इसलिए हम बहुत पर्वतों को शिव का स्वरूप मानते हैं और हर नदी को शक्ति का स्वरूप मानते हैं। नदियां अक्सर पहाड़ों के ऊपर से निकलती हैं, पहाड़ों के ऊपर उनका सोर्स रहता है, चाहे वो गंगा हो, चाहे वो गोदावरी हो, चाहे कावेरी हो, चाहे नर्मदा हो, वो एक पर्वत के शिखर से निकलती है, ये पर्वत की एक चोटी से निकलती है। तो उनका बेस मटेरियल जो है पानी, वो पर्वत से ही आता है। लेकिन उस पानी को लेकर जब वो चलती है तो वो जहां जहां जाती है वहां जीवन नर्चर करती हुई जाती है। वो जहां जाती है वहां खेती होती है, वहां सभ्यता होती है, वहां जीवन होता है, और केवल मानव जीवन नहीं, हर प्रकार का जीवन होता है। तो ये एक बेसिक नेचर है शक्ति का, जिसकी हम सब स्वरूपा हैं। कि हमें मटेरियल हमारा हो या किसी और का हो, लेकिन एक नर्चरिंग पावर हमारे पास आती है कि हमें सृजन करना आता है और हमें उस सृजन का पोषण करना आता है। ये दो चीजें, और ये हमारे इन्हीं कॉन्सेप्ट से आता है, जिसको हम शिव शक्ति के रूप में, और अगर हम देखना चाहें, पहाड़ क्या है, बहुत पावरफुल है, लेकिन वो अचल है, तो जहाँ खड़ा है वहीं खड़ा है। उसको हम हिलाना चाहें या वो हिलना चाहे तो भी हिल नहीं सकता। और नदी को आप देखेंगे, वो पहाड़ों को काटते हुए अपना रास्ता बना लेती है। उसको अगर निकलना है तो वो अपना रास्ता बना ही देगी, और अपने लिए ही नहीं बनाएगी। वो रास्ता केवल अपने लिए नहीं बनाती है, वो उन सबका पोषण करते हुए चलती है, तो उसके साथ उस रास्ते पे होते हैं। और आप कभी कभी इसमें पाएंगे, अगर आप इस पर थोड़ा सा चिंतन करेंगे तो आप पाएंगे कि यही स्त्री का जीवन है, कि वो निकलती अपने पिता के घर से है, लेकिन वो जीवन भर जहां जहां जाती है वहां वहां जीवन का पोषण करती है, जीवन का सृजन भी करती है माता के रूप में, और बाकी सब जगह वो पोषण भी करती है। और ये हमारी बेसिक नेचर है। इसको हम बहुत इससे हम दूर हट नहीं सकते, क्योंकि ये हमारी डीएनए में, ये हमारे नेचर में है। जिस तरह से इस यूनिवर्स का की क्रिएशन हुई है उसमें ये निहित है। इसलिए हम नर्चर करने में हम एक नेचुरल इंस्टिंक्ट फील करते हैं। आप अपने घर पे देखिए, जितने पुरुष हैं, अगर पुरुषों पे घर छोड़ दिया जाए तो घर वैसा ही रहेगा 10 दिन, 20 दिन, 40 दिन। लेकिन अगर एक स्त्री 2 घंटे के लिए भी उस घर में आएगी तो वो उसको कुछ सहेजने समेटने की कोशिश करेगी, क्योंकि ये हमारे नेचर में है, हमारी इनहेरेंट नेचर में है। और इसे हमारे ग्रंथों में शिव और शक्ति कहा है। और शिव शक्ति एसेंशियली आर नॉट एंथ्रोमॉर्फिक फॉर्म्स, जैसा कि हम देखते हैं, वो एक एनर्जी है, लेटेंट एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। इसको अगर मैं व्हाट्सएप फॉरवर्ड की भाषा में कहूँ तो इस तरह से कहा जाता है कि जो पुरुष है वो हेड है और जो स्त्री है वो नेक है। घूमता हुआ तो सिर दिखता है, लेकिन उसको घुमाने वाली स्त्री होगी। तो स्त्री जहां चाहेगी वहां वो उस नेक हेड को घुमा सकती है। अब बहुत बार हमें ये नैरेटिव सुनने को मिलता है कि पैट्रियार्की है, ब्राह्मणिकल पैट्रियार्की है। और मैंने ये प्रश्न कम से कम हजारों स्टूडेंट्स से और हजारों लोगों से पूछा है कि आपके घर में किसकी चलती है, अल्टीमेटली किसकी चलती है। बाहर से क्या दिखता है वो छोड़ दीजिए, अल्टीमेटली किसकी चलती है।
मुझे बताइए, आप में से कितनों के घर में आपकी माँ की या दादी की चलती है? ठीक है, तो आप मुझे बताइए कहाँ है पेट्रियार्की? कहाँ है पेट्रियार्की? अगर और हर कोई बोलता है मेरे घर में तो मेरी माँ की चलती है, मेरे घर में मेरी दादी की, नानी की, पर मीडिया मुझे बताता है कि पेट्रियार्की है। भाई तुम्हें तो पुरुष तुम्हारा शोषण करने के लिए पैदा हुआ है, ठीक है? तो अगर हम अपने घर में ये चीज नहीं देख रहे हैं तो कहाँ देख रहे हैं? और जैसा कि हमारा शास्त्र कहता है कि आप पढ़िए, आप सब जगह से ज्ञान लीजिए, लेकिन उसमें अपना अनुभव जोड़िए। जो आपको पढ़ाया जा रहा है या जो आपको सर्व किया जा रहा है उसको आप अपने आसपास भी देखिए कि क्या वास्तव में ऐसा हो रहा है या ऐसा मुझे बताया जा रहा है तो मैं आई हैव स्टार्टेड बिलीविंग इन इट। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले मुझे मेरे ट्विटर फीड पे एक बहुत अच्छी वेबसाइट का एक कैंपेन मिला, जिसमें वो कैंपेन कर रहे थे कि देयर इज नो शेम इन ब्रेस्ट फीडिंग। ठीक है, अब वेस्टर्न कंट्रीज में ब्रेस्ट फीडिंग एक शेमफुल एक्ट है जो आप पब्लिक में नहीं कर सकते, लेकिन भारत में अगर आपने हमारे जमाने में ट्रेन में ट्रैवल किया है, महिलाएं बिना किसी संकोच के ब्रेस्ट फीडिंग अपने बच्चों को कराती हैं और उनको कोई गलत दृष्टि से नहीं देखता, क्योंकि हम सब माँ का दूध पीकर बड़े हुए हैं। तो जब ये कैंपेन आया, मैंने उनसे पूछा तुमने भारत में ये कहाँ देखा, क्योंकि मैं भारत के बहुत जगह पर मुझे ट्रैवल करने का मौका मिला है, बहुत ज्यादा, एवरेज से बहुत ज्यादा मुझे ट्रैवल करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। I have not seen anywhere a woman being shamed because she is breastfeeding in public, and there are ample women breastfeeding in public. तो उन्होंने बोला but अरे this is a stigma. I said where is the stigma? Give me examples from India and then we'll talk about it. And they had no answer, so they removed the campaign. So you have to start questioning कि अगर मुझे नहीं दिख रहा तब भी आप 10 लोगों से पूछिए कि तुम्हें दिख रहा है। अगर किसी को नहीं दिख रहा तो don't let people create narratives for you and make you feel inferior for things that you have not even done. हम में से जो 50 के ऊपर के लोग हैं, हमने इनफ साइकिल्स देख लिए हैं, नमक से दांत मत साफ करो, टूथपेस्ट हैविंग सॉल्ट इन दिस, ये मत खाओ, ये खाओ, देसी घी खराब है तो देसी घी अच्छा है। तो हमारी जितनी भी चीजें हैं, आप उनको जब क्वेश्चन करते हैं, आप ये भी क्वेश्चन कीजिए कि मेरे देश में ये हजारों साल से चल रहा है एंड आई एम द ओनली कंटिन्यूअसली लिविंग सिविलाइजेशन। तो अगर ये चल रहा है तो इसके पीछे भी कोई कारण हो सकता है। प्रश्न कीजिए, हमारी संस्कृति हमें प्रश्न करने के लिए बोलती है कि आप अनुभव के बेस पे, ज्ञान के बेस पे, अगर आपके मन में कोई जिज्ञासा, शंका है तो आप उसके ऊपर प्रश्न पूछिए। बट आप ये भी प्रश्न पूछिए कि अगर हजारों साल से मेरे पूर्वज इस चीज को फॉलो कर रहे थे तो वो सब बेवकूफ तो नहीं थे, हम उन्हीं का डीएनए कैरी कर रहे हैं। तो एनीवे, कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो जो हमने शिव शक्ति की बात की, एक कॉन्सेप्ट बेसिक हमारा शास्त्रों में आता है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। जो मैक्रोकॉस्म में है वही मीसोकॉस्म और माइक्रोकॉस्म में होता है। तो उसको लेते हुए मैं कुछ कहानियां शास्त्र से पुराणों पे आते हैं। पुराणों में कुछ कहानियां जहाँ पर कि हमें एक एम्पावर्ड वुमेन के एग्जाम्पल देते हैं। वेरी कॉमन एग्जाम्पल, आई एम श्योर ऑल ऑफ यू नो दैट। जब सीता जी रामायण में वन में जाती हैं, वो क्यों गई वन में? उनको वनवास नहीं मिला था। Enough people told her not to go, or rather everybody told her not to go. There are references where she was asked to rule till Ram comes back, right? But she chose to go. She chose out of her choice. She let go of the luxuries of living in the palaces of Ayodhya, and she chose to be in the forest with her husband, where everything was ambiguous. Discomfort was guaranteed, problems were guaranteed, no luxuries would be there, it was guaranteed.
what they would meet, if they would come back alive or not guaranteed. Okay? But she chose that. Why? Because she was aware of her Stri Dharma. She said, if Shri Ram has taken a vow of being with me in my dukh and sukh, I have also taken a vow. Today, I meet so many young women who say, till you are giving me everything, everything is fine. The day you are unable to give me anything, okay, bye. You'll find ample examples of women who say, your money is my money is my money. We get the examples? Okay, Sita ji could have taken that choice very easily and nobody would have questioned her. Because there is no precedence that she was following. There was no order that she was following. But she took that because that was her commitment to her husband. So when we face tough choices in life, which we will, all of us will, in relationships, in social situations, in professional lives, can we ask ourselves, what would my ancestor like Sita ji do in this situation? And create an example like that. This is one example. There are many examples from Ramayana that we take. You know, Kekai is a character that we love to abuse. You know, we blame her. But we forget that she got her wounds because she saved the life of Dasharath. She was a warrior queen. She was a trained warrior. She could fight battles. And because of that, she got those wounds. She made a good or bad use is another discussion. But she got those wounds not in daan. She earned those wounds. Right? So, पुराणों में हमें बहुत अच्छी कहानियाँ मिलती हैं. My favorite is the Sati Savitri का story, and I like to tell it because Sati Savitri के नाम पर हमें बहुत ताने दिए जाते हैं. We are given taunts. ये तो Sati Savitri है. तुम क्या Sati Savitri हो? You know, it's almost like a gali that is given to us. And we also, in a popular storytelling, जो हमें टीवी पर देखने को मिलते हैं, फिल्मों में देखने को मिलते हैं, in popular parlance, Sati Savitri is somebody who, ठीक है, अपने पति की जान बचा के लाई, but you think उसने, she would have gone to the young and she would have, pleaded कि मेरे पति को छोड़ दो. पर जब आप महाभारत के वन पर्व में ये पूरा का पूरा आख्यान पढ़ते हैं, तो आपको पता चलता है कि सावित्री कितनी स्ट्रॉन्ग वुमन थी और उसके जैसी पर्सनालिटी शायद हमें पूरे इतिहास में कहीं नहीं मिलती. सावित्री का जन्म हुआ था सूर्य की उपासना करने के बाद. उनके पेरेंट्स मध्य प्रदेश के, जो आज की डेट में पंजाब का रीजन होगा, वहाँ के राजा थे. उनके पास संतान नहीं थी. उन्होंने सूर्य की उपासना की, तो उन्होंने, सूर्य ने कहा मैं तुम्हें बेटा नहीं बेटी दूंगा. ठीक है, तो उन्होंने उसका नाम सावित्री रख दिया. जब सावित्री reached the marriageable age, she was so bright, so well learned that उनके बराबर का कोई मिलना ही नहीं था. There was nobody who was eligible for her. Her father gave up, which is a situation with lot of fathers in today's day and time. आज भी बहुत पढ़ी लिखी, बहुत वेल एस्टैब्लिश्ड लड़कियां हैं, उनके सामने और उनके पिता के सामने ये सिचुएशन आती है कि उनकी लड़की के बराबर या उनकी क्षमता वाला कोई वर नहीं मिलता है. तो ये प्रॉब्लम भी उतनी पुरानी है जितनी की सभ्यता पुरानी है. तो उनके पिता ने कहा कि अब तुम देखो. तो उसने कहा ठीक है, मैं देशाटन पे निकलूंगी और मैं पूरी जगह, सब जगह घूम के, आज हम बोलते हैं, हमें लगता है सोलो ट्रैवल कोई बड़ी चीज है. उस समय में सावित्री अकेली निकली थी अपने लिए वर ढूंढने. तो उनको जाके सत्यवान लगा कि ये मेरे जैसे हैं, ये मेरी क्षमता से इनकी क्षमता मिलती है. और वो एक निष्कासित राजा के, एक एक्साइल्ड राजा के बेटे थे जो कि जंगल में रह रहे थे. तो आप देखिए, शी
being a daughter of a ruling king, she chose to marry the son of a exiled king, जिनके पास again कोई luxury नहीं थी, but she valued the fact that Satyavan was intellectually, mentally, emotionally like her. She chooses to marry, and on the day of marriage, Narad Muni comes to her and says Satyavan is going to die within a year of marriage. शादी के एग्जैक्ट 1 साल बाद इनकी मृत्यु निश्चित है. She doesn't tell it to anybody. She tells Narad, now that I have committed myself to him, I will go and live with him. बाकी जो होगा देखा जाएगा. She doesn't tell anybody. मृत्यु के दिन मृत्यु से 3 दिन पहले वो उपवास रखती हैं उनकी लंबी आयु के लिए, और फिर वो जब यम से उनका सामना होता है तो यम को वो अपने ज्ञान से पराजित करती है. अब यम और सावित्री का जो संवाद है महाभारत में, उसे आप पढ़िएगा, उसमें डिटेल में जाएंगे तो पूरा लेक्चर ही उसमें चला जाएगा. वो इतना बढ़िया संवाद है. एक बार भी वो उनको ये नहीं कहती कि मेरे पति को छोड़ दो. वो कहती है मैं इनके साथ चल रही हूँ और चलते चलते मैं आपसे कुछ वार्तालाप करना चाहती हूँ. और उसमें जो वो प्रश्न और उत्तर करती हैं उससे प्रभावित होकर यम उन्हें वर पे वर देते जाते हैं, और अंत में उनको वर ये मिलता है कि आपके पति जीवित हो जाते हैं. और इसीलिए जो स्त्रियां अपने पति के तरफ पूरी तरह से समर्पित रहती हैं उन्हें हम सती कहते हैं, और वट सावित्री का व्रत हम उसी इंसिडेंट को याद करके करते हैं. तो कल को कोई अगर आपको कहे कि तुम सती सावित्री हो, wear it like a badge of honor and tell them this story. And the reason a lot of people end up using our strongest symbols as negative is हमारा अपना अज्ञान. हमें अपनी कहानियां खुद नहीं पता, इसलिए दूसरे जो भी बोलते हैं हमें लगता है यही सच होगा. Only thing that you need to do is know your own history, know your own shastras, know your own stories, and you'll be able to reply to everybody. तीसरी कहानी जो मेरी बहुत फेवरेट है वो है रुक्मिणी की. रुक्मिणी जो है वो विदर्भ, जो नागपुर का एरिया है, उसकी राजकुमारी थी. श्री कृष्ण उस समय तक द्वारका बसा चुके थे. रुक्मिणी जी और कृष्ण जी कभी नहीं मिले लाइफ में, कभी नहीं मिले. लेकिन रुक्मिणी जी ने कृष्ण जी के बारे में सुन रखा था, और सुनने के बेसिस पर उन्होंने अपना मन बना लिया था कि मुझे इसी से विवाह करना है. अब सोचिए ये सिचुएशन, और ये आप लोगों को बहुत कष्ट होगा ये सोचने में कि ये मोबाइल फोन नहीं होता था, हम किसी को रीच आउट नहीं कर सकते थे. उन्होंने 7 श्लोक का एक पत्र लिखा, केवल 7 श्लोक, जिसमें उन्होंने ये लिखा कि मैं आपसे प्रेम करती हूँ, और प्रेम की लिमिट ये है कि अगर आप मुझे नहीं मिले तो मैं मृत्यु को अपना लूंगी और आपसे अगले जन्म में मिलूंगी, और अगर आप मेरा प्रेम स्वीकार करते हैं तो मेरा विवाह शिशुपाल से निश्चित हुआ है. उसके पूजन के लिए मैं फला दिन, फला तारीख, फला समय इस गिरिजा देवी मंदिर में जाऊंगी पूजा के लिए. उस समय मैं अकेली रहूंगी, आप वहां आकर मेरा अपहरण कर सकते हैं. पॉपुलर पार्लेंस में हमें क्या बताया जाता है? श्री कृष्ण ने रुक्मिणी का अपहरण किया. लेकिन जब आप केवल ये 7 श्लोक पढ़िए तो आपको पता चलेगा श्री कृष्ण केवल रुक्मिणी के आदेश का पालन कर रहे थे. उनको नहीं पता था रुक्मिणी कौन, मतलब ये पता था रुक्मिणी कौन है, जिसकी बेटी है, लेकिन उससे ज्यादा वो कभी उनसे मिले नहीं. लेकिन उस 7 श्लोक से इट्स द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स यू कैन एवर गेट. आजकल आप कम्युनिकेशन स्किल्स के लोगों को बुलाते हैं, वो आपको कुछ 4 चीजें बताते हैं, लेकिन इससे स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन, जिसको आप कभी मिले ही नहीं, उसको आप मोटिवेट करके कन्विंस कर देते हैं कि आप 1000 किलोमीटर, मैंने एक्चुअली गूगल मैप खोल के देखा, द्वारका से विदर्भ करीब 1100 किलोमीटर है, कि वो आदमी 1100 किलोमीटर चल के आता है, आपका अपहरण करता है, आपके लिए युद्ध
खून करता है, फिर आपके साथ विवाह करता है जैसा आप चाहते हैं। इससे बढ़िया एग्जाम्पल आपको नहीं मिलेगा फेमिनिज्म का या फीमेल एम्पावर्ड फीमेल्स का। लेकिन जिस तरह से ये हमें बताया जाता है एवरेज वर्जन्स में, ये एस्पेक्ट निकल कर नहीं आते हैं। मुझे भी कब समझ आया जब मैं द्वारका में रुक्मिणी मंदिर गई, वहाँ ये पत्र, रुक्मिणी का जो पत्र उन्होंने श्री कृष्ण को लिखा था, वो प्रसाद में दिया जाता है। क्योंकि आज भी जो वहाँ पे कन्याएं हैं जो श्री कृष्ण जैसा वर चाहती हैं, वो रुक्मिणी जी के मंदिर में जाके पूजा करती हैं। तो जब आप उसको डिटेल में स्टडी करेंगे, आपको लगेगा इससे बढ़िया कम्युनिकेशन स्किल क्या होगी। वो आदमी आपको जानता नहीं है और आपने उसको अपने प्रेम का भी संदेश दे दिया, प्रेम की सीमा का भी संदेश दे दिया, उसको पूरा प्लान दिया। उसको नहीं पता आपकी शादी कब, कहाँ, कैसे हो रही है, कि ये प्लान है, इस समय पर आप मुझे ले जाए। तो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स हमें मिलते हैं जब स्त्रियां खड़े होकर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है कि मुझे जो चाहिए वो मुझे करना है। इससे मेरा बड़ा लेसन जो मैं सीखती हूँ वो ये है कि अगर आप कुछ करना चाहते हो, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। डोंट एक्सपेक्ट योर फादर, योर मदर, योर ब्रदर, योर सिस्टर, योर हस्बैंड, योर फ्रेंड्स टू डू इट फॉर यू. You want something, go ahead and get it. You need support, please seek support. Please seek specific support. कि मुझे ये चाहिए, मुझे यहाँ से दिल्ली जाके के इंटरव्यू देना है, मेरे पास टिकट के पैसे नहीं है, मुझे दे दीजिए, मैं आपको सूद समेत 1 साल में लौटा दूंगी. टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी. अभी 4 दिन पहले मेरा एक एक्सीडेंट हुआ. एक 15 साल की बच्ची ने स्कूटी चलाते हुए मुझे पीछे से आके मार दिया, और उसके पेरेंट्स का जो रिएक्शन था, जिसको हम सोशल मीडिया की ज़ेनज़ी लैंग्वेज में कहते हैं पापा की परी. ठीक है, तो अगर आप पापा की परी बन के रहेंगी तो जब तक पापा रहेंगे तब तक ही आप परी रहेंगी. अगर आपको रानी बन के रूल करना है तो चीजें अपने हाथ में लेनी पड़ेगी. उसके बाद 2 ऐसे टेक्स्ट हैं हमारे जिसमें मुझे दुर्गा और देवी की कथाएं मिलती हैं और जिससे लेसन्स मिलते हैं. एक है दुर्गा सप्तशती और एक है ललिता सहस्त्रनाम, जो ब्रह्मांड पुराण से है. दुर्गा सप्तशती मार्कंडेय पुराण से है. मैं दुर्गा सप्तशती को अभी पाठ करती हूँ, अगर समय मिला तो हम उस पर जाएंगे. ललिता सहस्त्रनाम में देवी अंडासुर का वध करती है. अब उसमें एक सिचुएशन आती है कि रात को देवी का कैंप है और लड़ाई असुरों से है, और रात को असुरों की पावर बढ़ जाती है, असुर बहुत पावरफुल हो जाते हैं. तो रात को उन्होंने देवी के कैंप पे अटैक कर दिया. देवी स्टेप्ड इन एंड समहाउ मैनेज द सिचुएशन. और उसके बाद वो अपनी सेना को, और उनकी सेना पूरी स्त्रियों की है, योगिनियों की सेना है, उनको वो इंस्ट्रक्शन देती हैं कि जब भी वॉर करने जाओ सबसे पहले अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करो. जब भी आप बाहर निकले जहां आपका किसी असुर से सामना हो सकता है, तो पहले सबसे अपने आसपास एक सुरक्षा चक्र बनाए. तो एक देवी वहां पर एक ज्वाला की माला बना देती है, तो इसलिए उनका नाम पड़ा ज्वाला मालिनी. आपको कई जगह उनके मंदिर मिल जाएंगे. और ये लेसन कि हमें अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, हमारे को हर सिचुएशन पे अप्लाई करना है. आप कहीं भी जा रहे हैं, असुर किसी भी फॉर्म में हो सकता है. असुर आपकी अनएम्प्लॉयमेंट के फॉर्म में हो सकता है, असुर आपके पॉल्यूशन के फॉर्म में हो सकता है, असुर आपकी किसी सोशल इशू के बारे में हो सकता है, ई टीजिंग हो सकता है. लेकिन जब आप उससे लड़ने जा रहे हैं तो सबसे पहले अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करें. डोंट वेयर योर इंडिपेंडेंस ऑन योर स्लीव टिल यू आर सेफ. आप किसी ऐसी सिचुएशन में भी फंस जाते हैं जहां आपकी सुरक्षा खतरे में हो सकती है, तो सबसे पहले उस सिचुएशन से निकलिए, फिर उस खतरे से लड़िए. ये मेरा बहुत बड़ा लेसन है जो मुझे ललितोपाख्यान से मिलता है.
दूसरा, उसमें एक बहुत सुंदर वृत्तांत आता है गणेश यंत्र का। तो गणेश जी को हम विघ्नहर्ता बोलते हैं, तो उनका नाम विघ्नहर्ता कैसे पड़ा ये इस कथा में आता है। तो देवी की जो सेना का कैंप था उसमें कुछ यंत्र फेंके गए जिनको कहते थे विघ्न यंत्र। और जब मैंने उसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ी तो मुझे समझ में आया ये वही यंत्र हैं जो आज हमारे लिए मीडिया नैरेटिव्स हैं। तो ये यंत्र वो यंत्र थे जिन्होंने देवी की सेना को डिल्यूशन कर दिया, डिल्यूट कर दिया कि तुम क्यों कर रहे हो, क्या जरूरत है वॉर करने की, असुर इतने भी बुरे लोग नहीं हैं ना। तो जब आप सेना के मन में ये चीजें डाल देते हैं कि भाई तुम्हें क्यों जरूरत है लड़ने की, तुम तो अहिंसा के प्रेमी बन जाओ, तुम्हें क्या जरूरत है। तो देवी एक दिन देखती है कि उनकी सारी योगिनियां पड़ी हुई हैं, वो लड़ने को तैयार ही नहीं है, लड़ने को सज्ज ही नहीं है। तो फिर वो जब कैंप में चक्कर लगाती है तो उन्हें पता चलता है कि ये विघ्न यंत्र डाला गया है जिनसे इनके मन और मस्तिष्क पे ये प्रहार किया जा रहा है, जिससे ये लड़ाई खुद ही छोड़ देगी। और आप में से जो लोग सोशल मीडिया को, मीडिया एजेंसीज को फॉलो करते हैं, आप यही पैटर्न भारत में भी आज पाएंगे, जहां हमें कहा जा रहा है कि तुम तो अहिंसावादी हो, तुम तो शस्त्र उठा ही नहीं सकते। भगवत गीता तो अहिंसा का पाठ पढ़ाती है, जबकि हम सबको पता है कि भगवत गीता कहाँ बोली गई, युद्ध के मैदान में। किससे बोली गई, उससे बोली गई जो युद्ध छोड़ने को तैयार बैठा और सुनने के बाद युद्ध किया उसने। फिर भी हमें किसी ने कहा कि भगवत गीता अहिंसा सिखाती है और हम मान गए। तो ये मीडिया नैरेटिव है। उसके बाद देवी गणेश का सृजन करती हैं शिव जी के रूप में, और उसके बाद वो गणेश जी उस विघ्न यंत्र को नष्ट करते हैं और फिर युद्ध होता है। तो आज भी ये कथाएं हैं, हमें बहुत स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट में बताई गई हैं, लेकिन आज भी आप इनके अंश हमारे आसपास पाएंगे। आप पाएंगे कि आज भी मीडिया नैरेटिव्स बनाना एक बहुत बड़ा शस्त्र है जो बहुत से देश एक दूसरे के, या बहुत सी कम्युनिटीज या बहुत से लोग एक दूसरे के अगेंस्ट यूज करते हैं। उसको पहचानने की स्किल, उसको पहचानना और उसका निवारण करना कैसे करना है, ये हमें सोचना होगा। उसके बाद जितनी देवियां हैं, दुर्गा सप्तशती में देवी एक जगह कहती है एक तो वाहम, जिसके कौन, मैं अकेली हूँ, मेरे सिवा और कौन है, और हर स्त्री इस विश्व में मेरा ही स्वरूप है। लेकिन हम कभी कभी भूल जाते हैं कि लक्ष्मी सरस्वती दुर्गा, LSD, लक्ष्मी सरस्वती दुर्गा, ये सब हमारे अंदर है। 99% ऑफ द टाइम हम लक्ष्मी और सरस्वती के रूप में ही रहते हैं, या हम लक्ष्मी होते हैं या सरस्वती होते हैं। लेकिन दुर्गा, चंडी, काली भी हमारे ही अंदर है। ये इनको कब इन्वोक करना है ये जानिए और समझिए। उनको इन्वोक किए बिना हम बहुत काम नहीं कर सकते। कभी कभी उनको इन्वोक करना आवश्यक हो जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मैं थाईलैंड में थी ऑन अ बिग ट्रिप जहाँ बहुत से लोग थे। लास्ट डे था, वी वर स्टेइंग इन अ 5-स्टार होटल। लास्ट डे था, हम लोग चेकआउट करने से पहले ब्रेकफास्ट करने गए, मैं और मेरी एक मित्र। वापस आए, देखा कि हमारे रूम में हमारा सामान ही नहीं है। होटल वालों को बहुत रिक्वेस्ट किया कि आप ढूंढिए कहाँ है, क्या है। वो कुछ करने को तैयार नहीं हुए, भाषा की दुविधा भी थी। अल्टीमेटली हमें अपने अंदर की दुर्गा काली को इन्वोक करना पड़ा, सुर ऊंचा करना पड़ा, धमकी देनी पड़ी, उनको बताना पड़ा कि क्या क्या हम कर सकते हैं अगर आप कुछ एक्शन नहीं लेंगे। एंड बिलीव मी, विदिन 15 मिनट्स हमारा सामान हमें मिल गया। और उसके 15-20 मिनट के बाद हम नॉर्मल बात कर रहे हैं। तो ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी, तो बहुत जगह के लोग थे। भारतीय लोगों को ये समझ में आ गया कि ये परफॉर्मेंस था टू गेट द स्टफ बैक। लेकिन जो बाहर के लोग थे
उनमें से कम 10 लोगों ने आके पूछा, "You were so angry and within 10 minutes you are absolutely peaceful. How did you do that?" I said, "Because I realized that without showing anger, I am not going to get my stuff back. I have to invoke because the other person is used to that." बहुत बार, जिसको आम भाषा में कहते हैं लातों के भूत बातों से नहीं मानते, क्रोध हमारे षड्रिपुष में ही है, क्रोध को हम रिपु ही मान के चलते हैं। लेकिन कभी कभी जब सामने वाले को क्रोध से ही काम करने की आदत हो, तो अपने अंदर की दुर्गा, चंडी, काली को इन्वोक कीजिए। एंड बिलीव मी, व्हेन अ वुमन टेक्स द फॉर्म ऑफ चंडी, nobody in the world can stand. Nobody. हमारे ग्रंथों में जो सबसे फियर्स बैटल्स हैं, जो सबसे बड़े राक्षस हैं, उनका संहार जब कोई नहीं कर पाता, तब देवी करती है। और आप अपने आसपास भी देखेंगे, अपने परिवार में, समाज में भी देखेंगे, जब सब लोग थक खा जाते हैं ना, तब हमारी माँ पल्लू संभाल के बोलती है, "अब मैं देखती हूँ।" तो हम करने देते हैं टिल पीपल कैन मैनेज इट, बट जब हमें हाथ में लेनी पड़ती हैं चीजें, तो हम लेते हैं। दुर्गा सप्तशती में एक जगह देवी का स्तुति में इस तरह उन्हें बोला गया है, "अति सौम्या अति रौद्री।" तुम सबसे सौम्य भी हो, सबसे सुकोमल हो, सबसे डेलिकेट चीज जो वर्ल्ड में है वो भी तुम हो, और सबसे रौद्र चीज जो है वो भी तुम हो। ये तुम्हारा रेंज है कि तुम सौम्य ही रहती हो। जब तुम वध भी करती हो तब भी तुम दुनिया की सबसे सुंदर वस्तु, लेकिन तुम में वो रौद्रता भी है जो संहार कर सकती। ऐसे ही एक बार मैं रिसर्च कर रही थी कि इंडिया में इतनी हेरिटेज है, जैसे आपके यहाँ घाटों की फोटो लगी है, भारत में कहीं भी चले जाइए हेरिटेज है, ये हमारी धरोहर है, उसमें इतनी चीजें स्त्रियों ने बनाई हैं, लेकिन उनका नाम कभी आता नहीं। बॉम्बे में एक कॉजवे है, माहिम कॉजवे बोलते हैं, जो बांद्रा आइलैंड को मेन बॉम्बे से जोड़ता है। उसे बनाया था एक लेडी थी, आवाबाई, जमशेद जी जीजोबाई की वाइफ थी, और अब से 100-150 साल पुरानी बात, 150 साल पुरानी बात है लगभग। और उन्होंने क्यों बनाया था? उनके 3-4 पुत्र थे, उनको बेटी चाहिए थी, तो वो बेटी की मन्नत मांगने नाव पे चल के आई, और सी बहुत रफ था, तो उन्होंने कहा कि अगर मुझे बेटी हुई तो मैं यहाँ पर एक ब्रिज बनाऊंगी ताकि फिर किसी को नाव पे चल के नहीं आना पड़े। उनको बेटी हुई, उन्होंने माहिम कॉजवे बनाया। ऐसी भी कहानियां हमें मिलती हैं कि बेटियों के लिए लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी मन्नतें मांगी, और स्त्रियों ने मांगी। रानी की वाव आप में से किसी ने देखी हो, पाटन गुजरात में, इतनी सुंदर 7 मंजिल जमीन में जाके वो एक मंदिर जैसी बावड़ी बनी है, रानी उदयमती ने बनाई अपने पति की याद में। और अहिल्याबाई होलकर के बारे में तो मैं क्या ही बोलूँ, जहाँ भी भारत में जाइए उनकी छाप मिलती है। काशी विश्वनाथ आज हमारे पास है तो अहिल्याबाई होलकर। अहिल्याबाई होलकर की बायोग्राफी अगर आपको मिले तो यू मस्ट 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 रीड इट। आज की भाषा में बोलूं तो शी वॉज पिछड़ी जाति, दलित, ठीक है, शी वॉज अ विडो, शी हैड नो एजेंसी, लेकिन उन्होंने काम क्या किया? ब्राह्मणों को धर्म की रक्षा करनी चाहिए, उन्होंने धर्म की रक्षा की। क्षत्रियों को सुराज्य स्थापित करना चाहिए, उन्होंने सुराज्य स्थापित किया। वैश्यों को मंदिर बनवाने चाहिए, उन्होंने मंदिर बनवाए, और वो भी उस समय पर जब अंग्रेज आ चुके थे और हमें ये बताते थे कि यहाँ तो स्त्रियों की हालत बहुत खराब है। अहिल्याबाई होलकर को ट्रेन किसने किया? टू बी अ क्वीन, एंड अ क्वीन ऑफ द कैलिबर दैट शी हैड, उसके सास ससुर ने। हमें बताया जाता है सास ससुर का तो जन्म ही तुम्हें टॉर्चर करने के लिए होता है, लेकिन we have examples where the best known queen, the person who is known for good governance, was trained by her father-in-law and mother-in-law.
तो जितने ये फेमिनिज्म के पैरामीटर्स हैं उस पे तो वो फेल हो गए हैं। रानी लक्ष्मीबाई पे आते हैं। रानी लक्ष्मीबाई आज की भाषा में बोलूं तो सिंगल पेरेंट थी, जिसको आज बहुत सी महिलाएं क्लच की तरह यूज करती हैं कि अरे भाई मैं तो सिंगल पेरेंट हूँ, मैं ये नहीं कर सकती। वो बच्चे को पीठ पे बांध कर युद्ध लड़ने चली गई और यही काशी में जल रही थी। तो जब हम किसी लाइफ की, जैसा मैं पहले भी कह रही थी कि जब हम लाइफ की किसी सिचुएशन में फंसे तो सोचें अपनी मैट्रीलिनिएज के बारे में। पैट्रियार्की की बहुत बात होती है, लेकिन ये हमारी मैट्रीलिनिएज है। ये सब के सब हम इन्हीं का डीएनए कैरी कर रहे हैं, हम इन्हीं के वंशज हैं। चाहे वो सीता जी हो, चाहे अहिल्याबाई होलकर हो, चाहे रानी लक्ष्मीबाई हो, हम उन्हीं की वंशजा हैं। तो हमें उनको फ्रेमवर्क में रख के ये सोचना है कि वो इस सिचुएशन में क्या करती है। वुड शी हैव गिवन अप और वुड शी हैव लेड बाय एग्जाम्पल। अब मैं अपने व्याख्यान के तीसरे उस पे आती हूँ, सखी। संस्कृत में जितने भी हम नाटक काव्य पढ़ते हैं उसमें नायिका की हमेशा एक सखी होती है जो उसकी एक सपोर्ट सिस्टम होती है। उसको नायिका का सब पता रहता है, वो भाव जो उसके पति को भी नहीं पता रहेंगे, उसके परिवार को भी नहीं पता रहेंगे, वो उसकी सखी को पता रहते हैं। और सखी उसकी एक कॉन्फिडेंट होती है जिसमें वो कन्फाइड करती है। वो सखी आपको जीवन में ढूंढनी होगी। सीता जी भी जब अशोक वाटिका में थी तो उन्होंने त्रिजटा में अपनी सखी ढूंढी। जब वो दंडक अरण्य में थी उन्होंने वासंती नाम की एक स्त्री को अपनी सखी ढूंढी थी। अनुसुईया जी ने उनकी एक सखी, एक एल्डरली सखी का रोल प्ले किया था। और आपको आज भी ऐसे एग्जांपल्स मिल जाएंगे। हम लोग because we have not been out in the public life too much, हम लोग आपस में नेटवर्क नहीं करते हैं। Men network very well। Men जो है वो आपस में एक दूसरे के लिए बहुत कुछ करते हैं और वो बहुत अच्छे से नेटवर्क करते हैं। वो देते भी हैं, लेते भी हैं, हक से देते हैं, हक से लेते हैं। हम थोड़ा सा उसमें पीछे हैं। हम इतना खुल के देते भी नहीं है और मांगने में भी झिझकते हैं। तो ये हमें चेंज करना होगा। और इसका मैं आपको एक बहुत कॉन्टेम्परेरी एग्जाम्पल देती हूँ। आपने गुलाबी गैंग के बारे में सुना है छत्तीसगढ़ में? ठीक है, कहने को वो अनपढ़ महिलाएं हैं, इतने बड़े बड़े बिजनेस चला रही हैं। कैसे? जस्ट बिकॉज दे केम टुगेदर एज अ गैंग। दे कॉल देमसेल्व्स गैंग बट इट्स अ समिति। सब गुलाबी कपड़े पहनती हैं, वो उनकी पहचान है। और उनकी कॉमन प्रॉब्लम्स थी कि पति दारू पीकर आता है, मारता है, लोन नहीं है, बच्चों की एजुकेशन नहीं है। उन्होंने अपना ऐसा संगठन बनाया कि उस जगह पर तो उन्होंने ऐसा संगठन बनाया कि आज कोई भी पुरुष उनके तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता। उनको पता है कि मैंने अगर अपनी पत्नी पे भी हाथ उठाया तो 50 महिलाएं आ जाएंगी मुझे संभालने। उन्होंने अपने बच्चों के लिए एक अच्छा भविष्य बनाया, अच्छे बिजनेसेस शुरू किए। तो ये हमारे समय का है। एंड आई एम नॉट गिविंग यू एग्जांपल्स फ्रॉम कॉर्पोरेट वर्ल्ड जो आपको बहुत मिल जाएंगे गूगल पे। आई एम गिविंग यू एग्जांपल्स फ्रॉम ग्रास रूट्स वेयर वुमेन हैव कम टुगेदर। लिज्जत पापड़ का जो एग्जाम्पल है, कैसे वो महिलाएं एक दूसरे के साथ मिल के उन्होंने पापड़ का सबसे बड़ा उद्योग खड़ा कर दिया। ये एग्जाम्पल लेकिन हमें बहुत कम मिलते हैं। भविष्य में हमें ऐसे एग्जाम्पल्स बहुत सारे खड़े करते हैं जहाँ हम स्त्रियों के बीच में हमारी नेटवर्किंग अच्छी हो। वी कम टुगेदर बिकॉज वी अंडरस्टैंड ईच अदर्स पेन पॉइंट्स बेटर देन मेन कैन एवर डू। आपको पता है कि जब आपके पीरियड्स होते हैं आपको रेस्ट की ज़रूरत होती है। जब आपका बच्चा होता है आपको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। और ये सबको होती है तो हम एक दूसरे को सपोर्ट दे सकते हैं। ये यहाँ पर थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है आपकी जनरेशन को, जहाँ हम फिर हमारे पास कोई लिमिट नहीं है, हम क्या नहीं कर सकते। और जैसा रचना जी कह रही थी कि
वेस्टर्न हेमिस्फीयर में इतनी प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स हमको देखने को नहीं मिलती, जबकि भारत में जब भारत की आज़ादी को केवल 13-14 साल हुए थे, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनी, किसी ने ये नहीं कहा कि आप महिला हैं तो नहीं बन सकते, whether people liked her or not, but nobody said because you are a woman. इसीलिए इसरो में जब हम इतनी सारी महिलाओं को देखते हैं, हमारे लिए कॉमन बात है, हमारे लिए बहुत कॉमन है कि जहाँ पर पुरुष है वहाँ महिला होगी ही. अब if they choose not to be, then it's their choice. For example, आज का एग्जाम्पल दे रही हूँ, जितने आपके जोमेटो स्विगी के डिलीवरी बॉयज एंड येट टू सी डिलीवरी गर्ल्स, not that you cannot be, but you've chosen not to do that work. टैक्सी ड्राइवर, अभी भी बहुत सारे डोमेन्स हैं जहां हम नहीं गए, बिकॉज हम ऊपर देख रहे हैं. सो वी आर लुकिंग एट ब्रेकिंग द सो कॉल्ड ग्लास सीलिंग एंड नॉट लुकिंग एट एब्सोल्यूट इक्वालिटी. तो मैं जितना भी, कितना समय है ठीक है, एक दो चीज़ें जो मैं बहुत जगह कह चुकी हूँ कि जब भी कोई आपको बहुत सोशल मीडिया पे हमें देखने को मिलता है, लोग बोलते हैं अरे मैं अपनी शादी के बाद अपना नाम नहीं चेंज करूँगी, दिस इज फेमिनिन. आई विल नॉट यूज माई हस्बैंड्स नेम, आई विल यूज माई फादर्स नेम और कंटिन्यू टू यूज माई फादर्स नेम. लेट मी टेल यू, यू आर जस्ट कंटिन्यूइंग द एंशिएंट हेरिटेज ऑफ इंडिया. हैव यू एवर हर्ड मिसेस रामचंद्र, मिसेस कृष्णा? यू ऑलवेज हर्ड जनक सुता, जानकी, मैथिली, वैदेही. In fact, Shri Ram has been called Janakasutavar. एक देवी भागवत में जो रामायण का प्रसंग आता है, उसमें जिसमें रावण जब सीता जी का हरण करने आते हैं, he introduces himself, he says, he calls himself मंदोदरी पति. तो इसका मतलब मंदोदरी रावण से भी ज्यादा प्रसिद्ध थी, कि रावण अपने आप को मंदोदरी के नाम से करता है. तो लेकिन जब तक हम अपना इतिहास नहीं पढ़ेंगे, हमें जो बेचा जाएगा नैरेटिव हम ले लेंगे. अब जब भी कोई मुझसे कहता है इज इट योर सरनेम, इज योर हस्बैंड सरनेम और योर फादर सरनेम, ऐसे दिस लैंड, इन दिस लैंड women always belong to their fathers and the land of their birth. देवियों में देखने को मिलता है, अन्नपूर्णा को हम बोलते हैं काशीपुर वासिनी, शारदा को हम बोलते हैं काश्मीरपुर वासिनी, महालक्ष्मी को हम बोलते हैं करवीरपुर वासिनी, और हमारे घर में भी कानपुर वाली मौसी, लखनऊ वाली बुआ. ये लिंकेज है हमारा स्त्री का भूमि से. तो हम हमेशा अपनी भूमि से जुड़े रहते हैं. लेकिन प्लीज 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 गो बैक एंड रीड योर ओन इतिहास, एटलीस्ट रीड रामायण एंड महाभारत इफ नॉट मोर, क्योंकि उसमें आपको लिटरली हर उस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा जो हमसे पूछा जाता है, या जिसके बेसिस पे हमें नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है. उसका इतना सशक्त आंसर आपको मिलेगा कि आप दुनिया को लीड कर सकते हैं. दूसरा, this is the time, I mean, the younger generation, you are born at the right time in the right place. हमारी generation में probably people who were born in the western hemisphere had an advantage, लेकिन आज आपके पास जो advantage है वो दुनिया में किसी के पास नहीं है. The world is your playground, go out and conquer. And finally, मैं जो कहना चाहती थी संक्षेप में, उसका एक लाइन में उत्तर मुझे आपके कुल गीत में ही मिला. आपके कुलगीत की जो पहली लाइन है, भारतीय परंपरा की पोशिका, आपको ही भारतीय परंपरा की पोशिका बनना है, सम्मान का, विद रिस्पेक्ट, with your respect and with the respect of everybody around you. Now Puratan ka samanvay. This is a beautiful line. You have to be the balance between the ancient and the future. Ancient से आपको wisdom लेनी है, future से आपको skills लेनी है. Wisdom is eternal, skills are transient. Skills जो है वो change होती रहती है समय के साथ. The way things are done, they keep changing. So skills आपको आज की लेनी है, wisdom आपको ancient लेनी है, और हमसे ancient wisdom किसी के पास नहीं है.
और आप लोग तो दुगने लकी हैं कि आप काशी में हैं जहां आपको वो रेडिली मिल जाती है। रेस्ट ऑफ द इंडिया अगर मैं ढूंढने जाऊं तो मुझे नहीं मिलती है। तो ये आपके कुलदीप में ही मुझे मिला, आर्य महिला ज्ञानदा और ज्ञान देने वाले। डोंट आस्क फॉर एम्पावरमेंट, टेक द रोल ऑफ एम्पावरिंग, क्योंकि स्त्रियों का वही रोल था टू एम्पावर अदर्स। आप एम्पावरमेंट छोटी छोटी चीजें मत मांगिए, मुझे नौकरी दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, यहाँ रिजर्वेशन दे दो, वो दे दो, वो चीजें सब आ जाएंगी अगर आप अपने आप को उस लेवल पे ले जाएंगे जहां आप एम्पावर करेंगे, जहां आप दूसरों को एम्पावर करेंगे और वो आपसे आके दिशा लेंगे। विद दैट, थैंक यू वेरी मच एंड Good afternoon, ma'am. I want to ask, why does ancient epic Ramayana depict harsh punishment for Ravana's abduction of Sita, whereas modern society often fails to hold perpetrators accountable for more severe forms of abuse and violence against women? What gaps exist in current laws and judicial processes that allow such injustices to exist? क्योंकि रावण को उतना दंड दिया गया, because Ravan was given that kind of a punishment, we do not hear as many cases. Today, because our judiciary, our system, our society is failing to punish, we see the multiplication of crime against women. So, I think it's the failure of punishing that is contributing to the increase in crime rate against women or in general in society. So this is a question probably for the judiciary. Why are we not giving exemplary punishments? I'm with you. We should. Thank you, ma'am. Morning, ma'am. So we recently saw the news which got very sensational also. And there was a girl who topped in her UP board exam class 10. Her name was Prachi Nigam. And later on, she got very much viral on social media and people trolled on her facial hairs and all when her photo got viral. So, what does this reveal about the social, societal attitude towards women in India, about their body, physique, beauty and many kinds of challenges they face? See, what you can change is your own behavior. So if I am that girl, Prachi, I think uska naam hai. If I am Prachi, I'll just ignore, shine bright in whatever I do and shut them up. Okay, so और society भी तभी चुप होगी. If you start, you cannot let, see, आप सिर्फ उस चीज के लिए shame feel कर सकते हैं जो आपने गलत की है, ठीक है? और ये body shaming is a plan to sell you a lot of products. Body shaming कुछ नहीं है, आपको बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेचने का एक षड्यंत्र है और कुछ भी नहीं। और ये मैं अपनी किताब से आपको एक कोट करती हूँ, आप देख सकते हैं, मेरा श्याम रंग, और मैं पंजाब में पैदा हुई थी जहाँ पर कि ये एकदम श्राप माना जाता है, जहाँ लोग आके आपके माता पिता को ये कह देंगे कि भाई अफसोस है तुम्हारी, एक तो पहले तो लड़की हुई, ऊपर से काली हुई। तो जब मैं शायद फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड में थी, मैं अपनी दादी के साथ रहती थी पंजाब में एक छोटे से शहर में, और मैं एक दिन रोते हुए घर आई तो उन्होंने बोला क्या हुआ, ऐसे सब लोग मुझे काली कहते हैं। बोला ठीक है कोई बात नहीं, खाना खाओ फिर बात करेंगे। ठीक है, खाना खा लिया, मैं थोड़ी शांत हो गई तब तक। तो उन्होंने बोला कि अच्छा आप बताओ क्या हुआ, ऐसे सब लोग मुझे काली कहते हैं। पहले बोले सबसे पहले तो उसमें बुरा क्या है, गलत क्या है, तुम काली हो, भगवान ने दो ही रंग बनाए हैं, गोरा और काला, तुम काली हो, वो तुम्हें काली बोलते हैं तो तुम्हें गोरा बोल दो, बात खत्म। सबसे पहले तो एक्सेप्ट इट कि दिस अ मैटर ऑफ फैक्ट, ये कोई कमी नहीं है, इट्स अ मैटर ऑफ फैक्ट। किसी का रंग ये है, किसी का रंग वो है, किसी का रंग वो है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, उसको एक्सेप्ट करो। द मोमेंट यू एक्सेप्ट, सामने वाले की पावर ही खत्म हो गई, ठीक है। फिर उन्होंने हमें घर में कृष्ण जी की एक
का एक चित्र था, तो उन्होंने दिखा के बोले इस देश में तो कालों की ही पूजा होती है, तो बोलो उनको तुम्हारी पूजा करने को। फिर उन्होंने मुझे 20 एग्जाम्पल दे दिए कालों के, राम है, कृष्ण है, द्रौपदी है, और पंजाब में हीर रांझा, हीर एकदम काली थी, वो फिल्मों में दिखाते हैं गोरी चिट्टी, लेकिन वो काली थी, उनके उसमें आता है। तो आपको ये समझना है कि आप अपने आप को पहले तो एक्सेप्ट कीजिए। कोई आपको काला कहते आप ऑफेंड होके बैठ जाते हैं। ये गेटिंग ऑफेंडेड इज एन इंडस्ट्री इन इटसेल्फ। देयर आर पीपल हु गेट पेड टू गेट ऑफेंडेड। आपने चोरी की है, यू शुड बी अशेम्ड ऑफ दैट। आपने किसी के साथ कुछ बुरा किया है, यू शुड बी अशेम्ड ऑफ दैट। ये गोरे काले मोटे पतले पे ऑफेंड होना ही छोड़ दो। And I think that young girl Prachi handled it very well. She handled it beautifully. She should be an example.